Hello children, welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gardawara. This video is for class 11th. Subject is economics. Chapter 3, Economic Reforms since 1991. Economic reforms means what changes and improvements were made just after the independence through economic planning and by making 5-year plans. So on the eve of independence, India was struggling with the scarcity of food grains, and the status of industrialization was not good. But in first few 5-year plans, the government empathized to increase the production of food grains so that eatable items scarcity can be recovered. Then industries were divided in different sectors. Private sectors, public sectors, and mixed sector, in which again they were classified in micro industries, mini industries, small scale industries, medium scale industries, and large scale industries. Children, it was quite tough to adopt industrialization for the government, and for this they needed to adopt technologies. And India is the land of tradition, so government had to face the ethics, means the ethics. I mean to say, government has to face the revolt from common people. Then government tries to start a systematic plan for industrialization, and the achievements of green revolution started in decades of 80. So it had some lackings and some shortcomings. So they were all those lackings and shortcomings were tried to filled, and government adopted a policy of economic reforms after 1991, so that the achievements of required and desired GDP can be done, national income can be increased, per capita income can be increased, and living standard can be raised, propensity to save among citizens, and capital formation. So keeping all these aspects in mind, government started a systematic program of economic reforms. So it means everything, कुल मिलाकर तुम ये कह सकते हो कि 360 डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ कॉमन पब्लिक, a good infrastructure for the nation, and dynamic pace for economy. It was required. ये ज़रूरी था, इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। अब यही ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके।
what are the objectives? To make the Indian economy competitive, ताकि हम विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें. प्रोडक्टिविटी बढ़े. अब किस किस की प्रोडक्टिविटी बढ़े? सॉरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सर्विस सेक्टर, efficiency of human resource, optimum and maximum utilization of natural resources, etc., etc. Then to endure and strengthen the past profits. So it was also kept in mind. To utilize global resources for India's development. If there are some shortcomings and don't have technologies, then it could be borrowed or taken with the help of collaboration of multinational companies or with the foreign friends, so that the economy can be given an impetus, an impulse, तेज गति से भाग सके, पटरी पर आ सके अर्थव्यवस्था. उसके लिए सरकार ने प्रयास किए. तो कौन कौन से रीजंस थे जिनके कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करना पड़ा सरकार को? सबसे पहला रीज़न इसमें आपको दिख रहा है, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर. जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे सरकार के पास, वो सारे के सारे घाटे में चल रहे थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग नहीं थी. और लोग जो काम कर रहे थे, दे वर डूइंग वर्क फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट, नॉट फॉर द नेशंस इंटरेस्ट. दूसरा कारण था बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. इंडिया वॉज अंडर द स्टेट ऑफ इंडेटनेस. कर्जे में डूबे थे गले गले तक. और स्थिति ये थी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत दूर है, इंटरेस्ट अमाउंट भी चुका पाने में असमर्थ था भारत. इतनी गई गुजरी हालत में थे. एंड इतना कर्जा ले रखा था विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से और यूएन से और अदर जो यूएन की एजेंसीज़ हैं उनसे, कि उसका पैसा चुका पाना बड़ा मुश्किल था उन दिनों. जीडीपी पाताल में थी, पता ही नहीं था कहाँ है. तो ये सब जो चीज़ें थीं, इसके कारण सरकार को सोचना पड़ा कि यदि यही चलता रहा तो कैसे चलेगा देश. तब कहीं जा कर के सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करने के बारे में सोचा. एक नई पॉलिसी तैयार हुई. और भी बहुत से कारण थे इसके पीछे, जैसे कि डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो फंड था वो था ही नहीं. क्यों? बिकॉज वी वर डिपेंडेंट for different commodities on the foreign countries. It means there was more import in comparison to exports. तो हमारे पास import substitution था ही नहीं, and we were dependent on other countries, so we were importing. और एक्सपोर्ट बहुत लेस था अपना, तो फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी अपने पास. देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स. सरकारी संस्थाएं जितनी भी थीं या सरकारी जितने डिपार्टमेंट थे, सब घाटे में चल रहे थे. ऐसे बहुत से रीज़न्स थे जिसके कारण कि सरकार को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसा कदम उठाना पड़ा.
ठीक है। अब अपन बात करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इसको अपन जो 1991 में हुआ था रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, उसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल मेजर्स और दूसरा स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या था, उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा गया। सबसे पहली बात थी कि हमें सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन करना है, यानी कि हमारी सप्लाई एडिक्वेट होना चाहिए। किस चीज़ की सप्लाई? मनी सप्लाई, यानी कि थ्रू मनी मार्केट, एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ होल्डरिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल्टरिंग फॉर कमोडिटीज़, सो दैट इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड। तो अब पॉलिसीज़ बनी रिफॉर्म्स के लिए, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। रिफॉर्म्स पॉलिसी बनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए गए, और पॉलिसी फॉर पब्लिक सेक्टर्स। कैसे जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कैसे हेल्दी बनाया जाए। दूसरा था स्टेबलाइजेशन मेजर्स। यहाँ पर डिमांड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि डिमांड साइड को रखेंगे। यदि डिमांड नहीं रहेगी इकोनॉमी में तो फिर डिफ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। तो ना इन्फ्लेशन रहना चाहिए ना डिफ्लेशन, एक इक्विलिब्रियम रहना चाहिए इकोनॉमी में, तभी इकोनॉमी जो है वो आगे की दिशा में जा पाती है। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स में सरकार ने प्रयास किया, पहला कदम उठाया इंट्रोड्यूसिंग लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी बाय रिड्यूसिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। बैंक के थ्रू जो क्रेडिट क्रिएशन होता था वो। सेकंड किया एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी। हमारा जो इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट जो होता है वो यूएस डॉलर से होता है, तो उसमें एडजस्टमेंट हुए। अमेंडमेंट्स इन फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड इंट्रोड्यूसिंग एन अप्रोप्रिएटिव वेज इनकम पॉलिसी। वेज इनकम पॉलिसी मीन्स सरकार ने कुछ दरें तय की कि इस उद्योग में काम करने वाले को इतने कम दर से पैसा नहीं दिया जाएगा उसके लेबर को, या इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को इससे कम तनख्वाह नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स उठाए, यानी तो कुछ मजदूरी की दरें तय की। ये जो 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, ये 4 पिलर्स थे इसके मेन। पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन और चौथा मॉडर्नाइजेशन। अब ये क्या थे और कैसे थे, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।